کر گیا اور میں نے اس کو محسوس بھی کیا اور ایک غزل کی صورت میں پیش کیا ہے میں نے اس کو. اگر آپ سننا پسند کریں. بالکل ہم سنیں گے، مگر اس سے پہلے ایک اعتراض یہاں کے لوگوں کو یہ ہے کہ یہ جو ایک ہجرت کا دکھ ہے یہ ایک فیشن بن چکا ہے، اور وہاں لکھنے والے سب جو ہیں وہ ایک فیشن میں اپنے وطن کو یاد کرتے رہتے ہیں. اور کچھ لوگوں کا خیال یہ کہ بھئی اگر وطن سے اتنی محبت تھی تو گئے ہی کیوں؟ یہاں بھی تو شعراء اور جی شاعرات بالکل. مقیم ہیں اور اپنے بچوں کو یہیں پڑھاتے ہیں، یہیں سروائیو کرتے ہاں ہیں، یہیں بالکل. زندگی گزارتے ہیں. تو اس کا کیا جواب دیں گے؟ ہاں دیکھیے، کچھ حالات انسان کے سب کے اپنے الگ الگ ہوتے ہیں، کچھ مجبوریاں ہوتی ہیں جس کی وجہ سے انسان، اور بچے جو نئی نسل ہے وہ تو چاہتے ہیں نا کہ نئی فضاؤں کو چھوئیں. وہ ان کے اندر وہ بات تو نہیں ہے جو ہم نے محسوس کی ہے یا جو ہمارے اندر سرایت کر چکی ہے، ہماری مٹی میں نفوذ کر چکی ہے ان جس کو میں کیوں کہنا نہیں؟ چاہیے. ان میں نئی منزلوں کو چھونے کی دھن زیادہ ہے نا، ان کو نئی فضائیں زیادہ بھا گئی تو ہیں. یہ ہماری غلطی نہیں ہے کہ ہم نے ان کو یہ بتایا ہے کہ نئی فضاؤں کو چھو کے واپس زمین پر ہی آنا ہاں ہے بالکل. اور اپنی زمین پہ اترنا بالکل ہوتا اپنی ہے؟ زمین پہ تو واپس آنا. اگر حساس طبیعتوں کے لوگ ہیں وہ یہی کہتے ہیں، ہمارے بچے بھی یہی کہتے ہیں کہ ہم واپس آئیں گے پڑھ کے اور یہاں کے ہم. کیونکہ ذاتی طور پہ ہمیں بڑا دکھ ہوتا ہے جب ہم کسی شاعر یا ادیب کو یہ کہتے سنتے ہیں کہ ہمارا پوتا باہر رہتا ہے اور وہ ہماری کتاب نہیں پڑھ سکتا، تو یا نہیں. نواسی یا نواسا. ہاں بالکل تو ایک دکھ بھی ہوتا ہے اور بالکل ساتھ ہی بہت دکھ ساتھ کی بات ہے. یہ احساس ہوتا ہے کہ یہ ہماری اپنی کوتاہی ہے. ہاں بالکل. لیکن میں اپنی ذاتی نوعیت کی بات آپ سے کروں گی کہ میرے ماشاءاللہ 4 بچے ہیں، 2 بیٹے ہیں 2 بیٹیاں. وہ سب فنون لطیفہ سے گہرا شغف اور گہرا لگاؤ رکھتے ہیں. بلکہ چھوٹی بیٹی تو میری انگلش لٹریچر میں ماسٹرز کر رہی ہے وہاں. تو ان کے اندر ان کی فیلنگز پہ میں محسوس کرتی ہوں کہ شاعری ہے، جذبات ہیں، جذبات کے اظہار کا سلیقہ ہے. اور اب اس کے بعد آنے والی نسل کی تو میں ابھی آپ کو ضمانت نہیں دے سکتی، صحیح. لیکن ہماری یہی کوشش ہوگی کہ ہمارے بعد جو نسل ہے اور اس کے بعد کی بھی جو نسل ہے وہ اپنی ثقافتی اقدار کو فراموش نہ کرے اور وہ بھی اپنے وطن کی مٹی سے وہی لگاؤ رکھے جو ہم نے ڈیولپ کر لیا ہے، جو ہمارے اندر موجود ہے، جو ہمارے اندر سرایت کر چکا ہے، اور ہم اس کو باوجود کوشش کے اپنے اندر سے ختم نہیں کر سکتے. انشاءاللہ. غزل جی. سنتے ہیں. تو یہ ایک احساس کرب تھا جو میں نے اپنی اس غزل میں اپنی پوری یعنی انتہائی فیلنگز کے ساتھ جو جی چیز میں جی نے محسوس کی اس کے کچھ اشعار آپ کو سنا رہی ہوں. ارشاد. کہیں زمین کہیں آسمان چھوڑ آئے، واہ. کہیں زمین کہیں آسمان چھوڑ آئے، دیار کرب میں اپنا مکان چھوڑ آئے. کیا کہنے. واہ کہیں واہ. زمین کہیں آسمان چھوڑ آئے، دیار کرب میں اپنا مکان چھوڑ آئے. نئے سفر پہ نئے موسموں نے دی آواز، نئے سفر پہ نئے موسموں نے دی آواز. کڑی تھی دھوپ مگر سائبان چھوڑ آئے، واہ واہ. کڑی تھی واہ واہ. دھوپ مگر سائبان کیا چھوڑ کہنے. آئے. یہ جان کر بھی کہ نامہربانیاں ہوں گی، یہ جان کر بھی کہ نامہربانیاں ہوں گی، پرانے شہر میں سب مہربان چھوڑ آئے. واہ واہ. پرانے شہر میں واہ. سب مہربان چھوڑ آئے. تلا تمہیں غم دوراں میں بہہ گئے پتوار، تلا تمہیں غم دوراں میں بہہ گئے پتوار. ہوا کے ہاتھ میں ہم بادبان چھوڑ آئے، واہ. ہوا کے واہ واہ. ہاتھ میں ہم بادبان چھوڑ آئے. جہاں سے اذن تکلم کبھی نہیں ملتا، جہاں سے اذن تکلم کبھی نہیں ملتا، وہیں پہ اپنی دریدہ زبان چھوڑ آئے، واہ واہ. وہیں پہ اپنی دریدہ زبان چھوڑ آئے. ہمیں پتا تھا کہ موجز بیانیاں ہوں گی، ہمیں پتا تھا کہ موجز بیانیاں ہوں گی، یعنی ہمارے جانے کے بعد کچھ نہ کچھ کہیں گے. وہ تو ہر جگہ ہوں گے. ہمیں پتا تھا کہ موجز بیانیاں ہوں گی، زبان خلق مگر بدگمان چھوڑ آئے، واہ واہ. زبان خلق مگر بدگمان چھوڑ آئے. جہاں کسی کو بھی اپنا پتہ نہیں ملتا، جہاں کسی کو بھی اپنا پتہ نہیں ملتا، وجود نور وہیں بے نشان چھوڑ آئے، واہ. وجود نور وہیں بے نشان چھوڑ کیا آئے. شکریہ. اور کچھ عطا کیجیے گا. یہ ایک چھوٹی بہر کی غزل ہے. جی. اس غزل کو میں نے واشنگٹن کے ایک مشاعرے میں بھی پڑھا تھا، تو وہاں لوگوں نے کافی اس کو سراہا، تو میں بہت شاید آپ لوگوں کو بھی پسند ہے. کوئی اب اذن خود نمائی دے، کوئی اب اذن خود نمائی دے، پھر مجھے لطف خود ستائی دے. کیا کہنے. کوئی اب اذن خود نمائی دے، پھر مجھے لطف خود ستائی دے.
वहशतें हो गई हैं क्यों मसदूद, वाह वहशतें हो गई हैं क्यों मसदूद, अपने मसलूब को रिहाई दे। वाह वाह वहशतें वाह। हो गई हैं क्यों मसदूद, अपने मसलूब को रिहाई दे। रास्ते दायरों में कर दे असीर, क्या रास्ते दायरों में कर दे असीर, उसको तौफीक बास पाई दे। वाह वाह रास्ते दायरों में कर दे असीर, उसको तौफीक बास पाई दे। वो समझता है खुद को ला हासिल, वो समझता है खुद को ला हासिल, उसको भी लज्जते रसाई दे। वाह वो समझता है खुद को ला हासिल, उसको भी लज्जते रसाई दे। किरचियां चुभ गई हैं आंखों में, किरचियां चुभ गई हैं आंखों में, मेरे ख्वाबों को दिल रुबाई दे। वाह किरचियां चुभ गई हैं आंखों में, मेरे ख्वाबों को दिल रुबाई दे। मुझको शहमात दे के भूल गया, मुझको शहमात दे के भूल गया, कुछ तो तस्कीने का जदाई दे। क्या कहें। मुझको शहमात दे के भूल गया, कुछ तो तस्कीने का जदाई दे। वाह धड़कने फिर से मुस्तरिब कर दे, धड़कने फिर से मुस्तरिब कर दे, कोई तहरीक आशनाई दे। वाह वाह धड़कने फिर से मुस्तरिब कर दे, कोई तहरीक आशनाई दे। मोतबर अब मेरी तलब ठहरी, मोतबर अब मेरी तलब ठहरी, नूर को कासए गदाई दे। वाह। मोतबर अब मेरी तलब ठहरी, नूर को कासए गदाई दे। बहुत शुक्रिया। खूब। जी नाजरीन, इसके साथ ही वक्त हो गया बज़्म शायरी में आपकी शिरकत का। और तरीक़ाकार आप जानते हैं कि जो नंबर स्क्रीन पे चल रहा है वो नंबर डायल कीजिए और बज़्म शायरी में शरीक हो जाइए। लेकिन उससे पहले टेलीविज़न की आवाज़ बंद या कम कर दीजिएगा ताकि हमारा आपका राब्ता ज़्यादा अच्छी तरह हो सके। तो कॉल कीजिए। और आप जानते हैं कि आज बज़्म शायरी में हमारी मेहमान हैं कनाडा में मुकीम मारूफ शायरा नूर शमा नूर साहिबा। तो अगर आप उनसे कोई सवाल करना चाहें या अदब के हवाले से कोई भी बात हम तक पहुंचाना चाहें या करना चाहें तो आप बज़्म शायरी में शरीक हो सकते हैं। अच्छा, एक तो हो गई हिजरत, कनाडा पहुंच गए। अब वहाँ पर मुख्तलिफ जैसे अभी बात हुई कि ज़बानों के रहने वाले और सकाफ़तें हैं, कल्चर है। क्या वजह है कि यहाँ से जाने वाले शोरा वहाँ का जो कल्चर है, वहाँ का जो अदब है, उसका रंग रस अपनी तख्लीक़ात में शामिल नहीं करते, नए तजर्बात नहीं करते, उनका डिक्शन वही रहता है? अब क्या नहीं, वजह है? ऐसी मतलब बात ऐसा नहीं क्यों है। नहीं होता? नहीं, ऐसी बात तो नहीं है। अब तो अदब में बहुत तब्दीली आ रही है और जैसे जैसे माहौल बदलता जा रहा है और लोग जो है उस कल्चर में जम होते जा रहे हैं, कुछ ना कुछ असर तो आ रहा है बहरहाल। मतलब आपने किए कोई नए तजर्बे? जी, अब मैंने तो खैर नहीं किए हैं क्योंकि मुझे तो इतना अरसा हुआ नहीं है अभी वहाँ। मैं तो अभी समझिए कि बरज़ख में हूँ। अच्छा सही। तो तजर्बात की जहाँ तक बात है, जो लोग वहाँ लिख रहे हैं नए तजर्बात के साथ, ख़ास तौर पे नज़्म के सिलसिले में जो मैंने महसूस किया है, तो बड़े अच्छे तजर्बात हो रहे हैं और कैनवस वसी है वहाँ का, क्योंकि हर किस्म के अदब को मिक्स करके एक नए तरीके का अदब वजूद में आ रहा है, जिसमें हमारे मसाइल भी हैं, हमारे अहद का कर्ब भी है, उनके मसाइल भी हैं, उनके सकाफ़ती मसाइल भी हैं जिनको हम महसूस करते हैं और आहिस्ता आहिस्ता जो है वो हमारी ज़िंदगी में भी सरायत करेंगे जब हम वक्त गुजरेगा हमारा वहाँ पे। तो ऐसी बात नहीं है, बड़े तजर्बात हो रहे हैं, बड़ी नई नई चीज़ें लिखी जा रही हैं और ख़ास तौर पर अमेरिका से और इंग्लैंड से जो अदबी रिसाले शाया हो रहे हैं उसको अगर आप पढ़ें तो आप महसूस कर सकती हैं। नहीं, रिसाले तो हम तक पहुँचते हैं, जी। मखज़न यहाँ बड़ी जी, जी, पाबंदी से बिल्कुल, आता है, वो बिल्कुल। बहुत बड़ा काम कर रहे हैं मकसूद हाँ। इलाही शेख साहब। इस वक्त हमारे साथ एक कॉलर हैं, उनको जी, शामिल कर लेते हैं। बिल्कुल। अब्दुल कादिर साहब साहिवाल से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी अब्दुल कादिर साहब। जी, मेरा आपके प्रोग्राम में दूसरी कॉल है। बहुत पहले मैंने शुक्रिया। 4-5 दिन पहले आई थिंक की थी, लेकिन उस वक्त तो आपने मेरे सवाल को दूसरे रंग में ले गए अच्छा। और मैंने आजकल की शायरी के मुतालिक आपको शायद याद हो किया था कि मैंने एक टी स्टॉल पे गया था, लेकिन आप मेरे सवाल की तसल्ली नहीं हो सकी थी। आप ज़रा ज़ोर से बोलेंगे, आपकी आवाज़ बहुत हल्की आ रही है। जी ठीक है जी। जी। अब ठीक है जी बेहतर। जी। तो मेरा सवाल फिर वही है हम्म। कि आजकल जो अदब हमें शायरों से सीखना चाहिए, वो हमारे बड़े हैं, सारी बात, वो क्वालिफिकेशन भी उनकी ज्यादा होती है, तो अगर उनसे ही हमें बेहुदा बातें सुनने को मिलेंगी तो हम अदब के लिए कहाँ जाएंगे? तो मुझे तो यही बताया गया था ना कि वहाँ पे एक अदबी महफिल होती है। मैंने सुना कुछ लोगों से, वहाँ पे गया, लेकिन वो
आगे से जो बेहुदा गुफ्तगू सुनने को मिली, मेरा दिल टूट गया। मेरा यही क्वेश्चन है कि जैसे वो शायरी होती थी अपना, रईस अमरोही साहब एक नाम है उनकी, एक बज़म में सादात अमरोहा मैंने एक मुशायरा पेश किया, वहाँ पे मुझे बहुत कुछ सुनने को मिला और अच्छा मिला, खुश हुआ मैं। लेकिन उसी तरह का मैं यहाँ पे आया तो वो मजीद अमजद की शायरी या साहिवाल के जाफर शिराजी साहब थे उनकी शायरी, वो मुझे अफसोस के साथ वो चीज मुझे सुनने को नहीं मिली। तो भाई और अपने उसके सवाल का अलावा एक जवाब आपने फरमाइश है। खुद ही दे दिया ना। अच्छा पहले फरमाइश बता मेरा दीजिए। वही तो है ना कि मैं फरमाइश आपसे भी ये है कि आप अपनी गजल सुनाए। हम अपनी गजल सुनाएं। हाँ, आप मिस अंबर साहब आप अपनी कोई शायरी की गजल सुनाए। अच्छा बहुत बहुत जी, अपने शुक्रिया, लिखे। कोशिश करेंगे आपकी फरमाइश पूरी कर दें, आज नहीं तो फिर कल। जो बात आपने कही ना, देखें आपके सवाल में ही तो आपका जवाब मौजूद है। आपको एक जगह पता चला कि नशिस्त होती है अदबी, आप वहाँ गए और वहाँ आपको अच्छी गुफ्तगू सुनने को नहीं मिली, लेकिन साथ ही आपने ये बताया कि जब आप सादात अमरोहा के एक मुशायरे में शरीक हुए तो वहाँ से आप बहुत कुछ लेके उठे। इसका मतलब ये है कि हर तरह की महफिलें होती हैं, हर तरह के लोग हर फील्ड में होते हैं, हर मैदान हर शोबे में आपको हर तरह के लोग मिलेंगे। आपको अच्छे लोग तलाश करने हैं, दिल इतनी जल्दी मत तोड़िए अपना। आप खुद जब एक अच्छी जगह होकर आ चुके हैं तो इसका मतलब है कि अच्छी जगह मौजूद है ना। अगर आप सादात अमरोहा में नहीं आ सकते, आप किसी ऐसे अच्छे अदबी मरकज़ तक नहीं पहुंच सकते, तो इतनी जल्दी हिम्मत मत हारिए। एक जगह आप गए, वहाँ अच्छी महफिल नहीं थी, आपने तय कर लिया कि ये मेरे मिजाज के लोग नहीं हैं, मैं आइंदा यहाँ नहीं आऊँगा। उसके बाद आप कहीं और जाइए जहाँ नशिस्त होती है, हो सकता है वो भी आपको पसंद ना आए। तलाश करते रहिए अच्छा अदब, अच्छे लोग, अच्छी महफिल, जहाँ आपको नज़र आए बस आप समझ जाइए कि यहाँ मुझे आना है, यहाँ से मुझे सीखना है, और वहाँ ज़ाहिर है कि फिर आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो उस दिन भी हम आपका सवाल समझ गए थे और आपको हमने यही समझाने की कोशिश की थी कि हर शोबे की तरह अदब में भी बहुत अच्छे लोग मौजूद हैं, और उनके साथ साथ ज़ाहिर है कि शख्सी कमज़ोरियों के साथ भी लोग यहाँ मौजूद हैं। तो हमें तलाश खुद करना है कि हमें किन के पास जाना है और कौन सी महफिलें हमारे लिए हैं। एक और कॉलर मौजूद है, उन्हें शामिल करते हैं बज़्म शायरी में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। जी मेरा नाम डॉक्टर शहजाद अरशद है जी। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जनरली जो एक ट्रेंड देखा जा रहा है आजकल की जो नौजवान नस्ल है, जो खासकर हमारे बच्चे हैं, यंग जनरेशन, उनमें जो शायरी का एक जो समझने का, उसको पढ़ने का, उसको रीड करने का, उसको अंडरस्टैंड करने का जो एक ट्रेंड है, एक जो रुझान है, वो कंपैरेटिवली उतना नहीं है जितना कि हमारे ज़माने में था। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। मैंने मैट्रिक किया अभी पब्लिक स्कूल से, मैं वहाँ प्रेसिडेंट था बज़्म अदब सोसाइटी का 1980 में। जी तो तकरीबन एवरी ऑल्टरनेटिव डे हम वहाँ शायरी का प्रोग्राम अरेंज करते थे, इंटर स्कूल्स करते थे, और एक बड़ा एक सिलसिला था। लेकिन आजकल जैसे मैं देख रहा हूँ अपने बच्चों को भी, या जो नई जनरेशन हमारी आ रही है, इनमें वो शायरी का वो ट्रेंड तो दूर की बात, उर्दू को पढ़ना, उर्दू को समझना ही जो है वो काफी कम होता जा रहा है। तो मैं ये समझता हूँ कि उर्दू एक इतनी अच्छी जुबान है और एक बरसों से एक हमारी अंदर बसी हुई है, उसको हमें इस तरह से खराब नहीं करना चाहिए, और हमें इसको प्राइवेट लेवल पे भी और गवर्नमेंट लेवल पे भी जितना पॉसिबल हो उतना इसकी तरफ कंसंट्रेट करना चाहिए, बिकॉज ये हमारा सरमाया है, ये हमें हमारे बुजुर्गों से, हमारी नस्लों से हमें मिला है। तो हमें इसको भुलाना नहीं चाहिए और अपनी नई जनरेशन को इस तरफ राग़िब करना चाहिए। यही कहना था बहुत मेरा। बहुत शुक्रिया डॉक्टर शहजाद, आपने बड़ी अहम बात की, और यकीनन जब एक बार ये बात तय हो गई कि उर्दू से ज़्यादा अच्छी राब्ते की कोई ज़बान हो नहीं सकती। सारी ज़बानें बहुत अच्छी हैं, बहुत अहम खूबसूरत ज़बानें हैं, लेकिन राब्ते का काम जितना उर्दू ज़बान पाकिस्तान में अंजाम दे सकती है, कोई और ज़बान अंजाम नहीं दे सकती। कोताही ये हुई है कि हम और आप खुद अपने बच्चों से अंग्रेज़ी में बात करना पसंद करते हैं। हम ये पसंद करते हैं कि हमारा बच्चा जब स्कूल से वापस आए तो वो हमें इंग्लिश में गुड आफ्टरनून कहे और जाते हुए गुड बाय कहे, और हम इस चीज़ पर खुश होते हैं। अंग्रेज़ी ज़बान सीखना कोई जुर्म नहीं है, कोई गलत बात नहीं है, लेकिन उसे उर्दू की जगह दे देना गलत है। उर्दू पहले सीखिए, उसके बाद अंग्रेज़ी भी सीखिए। और अगर हम ये चाहते हैं कि